راہ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ سب کی خدمت میں پروگرام راہ زندگی لے کر حاضر ہے عادل مشتاق، اور آپ سب کو بہت بہت سلام قبول ہو۔ امید کرتا ہوں کہ سب لوگ خوشی اور سلامتی سے قائم ہوں گے اور خداوند تعالیٰ آپ سبھی کو سلامت اور آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ سامعین، اگر ہم اپنے معاشرے پر غور کریں تو ہمارے معاشرے میں ایک چیز ہمیں بہت عام دکھائی دے گی۔ ہم بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں جو ہمیں ہاتھ پھیلاتے یا اپنی ہر وقت پریشانیوں کو بیان کرنے کا ایک نعرہ لگاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمیں یہ چاہیے، ہماری اس میں مدد کر دیں۔ اور بہت سے ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو، چاہے وہ پانی میں نمک مرچ مکس کر کے روٹی کھاتے ہیں، لیکن وہ خودداری کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ خداوند تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو میں نے اس صورتحال میں سے بہت جلد نکلتے دیکھا ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خودداری کے ساتھ محنت کرتے ہیں اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اور جناب، جہاں بات ہے کچھ ایسے لوگوں کی کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مدد ہوئی اور وہ پھر ان کی عادت بن گئی، اور ایسی عادت بنی کہ وہ اسی میں ہی ڈوبے رہ گئے اور کبھی بھی دوبارہ نکلنے کی کوشش نہیں کی۔ چلیے، اسی پہ ہم آگے بھی بات کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم آگے بڑھیں گے اور خداوند تعالیٰ کے مقدس کلام میں سے اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے سنیں گے۔ خداوند یسوع المسیح نے فرمایا، اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو، جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو، جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ زنگ، اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ واقعی خداوند کے کلام میں یہ بہت انتباہی اور بڑا خوبصورت پیغام ہے کہ ہمیں اپنے لیے صرف زمین پر مال جمع نہیں کرنا، بلکہ آسمان پر بھی جمع کرنا ہے، جو ہمارے لیے دائمی طور پر مفید اور فائدہ مند ہوگا۔ چلیے، خداوند کے طرف دھیان لگانے کی بات ہے تو آئیے ہم اس کی طرف دھیان میں آگے بڑھیں اور اس کی حمد و ستائش میں شامل ہو کر مل کر برکت پائیں۔ میرے سر میں صرف خدا بسے، میری عقل میں بھی خدا رہے، میرے سر میں صرف خدا بسے، میری عقل میں بھی خدا رہے، میرے سر میں صرف خدا بسے، میری عقل میں بھی خدا رہے۔ میری آنکھوں میں بھی خدا ہی ہو، میرے دیکھنے میں خدا رہے، میری آنکھوں میں بھی خدا ہی ہو، میرے دیکھنے میں خدا رہے، میرے دیکھنے میں خدا رہے، میرے سر میں صرف خدا بسے، میری عقل میں بھی خدا رہے۔ میرے منہ میں اس کا کلام ہو، میرے بولنے میں خدا رہے،
کا کلام ہو، میرے بولنے میں خدا رہے، میرے بولنے میں خدا رہے، میرے سر میں صرف خدا بسے، میری عقل میں بھی خدا رہے۔ میرا دل خدا کا مقام ہو، میرے سوچنے میں خدا رہے، میرا دل خدا کا مقام ہو، میرے سوچنے میں خدا رہے، میرے سوچنے میں خدا رہے، میرے سر میں صرف خدا بسے، میری عقل میں بھی خدا رہے۔ میرے خاتمے پہ خدا ہی ہو، میرے کوچ میں بھی خدا رہے، میرے خاتمے پہ خدا ہی ہو، میرے کوچ میں بھی خدا رہے، میرے کوچ میں بھی خدا رہے، میرے سر میں صرف خدا بسے، میری۔ جی تو سامعین سن رہے تھے محمدیہ کلام۔ تو سامعین ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ ہمیں خط لکھتے ہیں، آپ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، تو آپ اس کو ضرور کریں۔ پروگرام راہ زندگی، پی او باکس نمبر 117 فیصل آباد پاکستان پہ ہمیں خط لکھیں۔ فون کال کے لیے 0333 4825 نمبر استعمال کریں، اور واٹس ایپ کے لیے 0305 33 77 310، اور فیس بک آئی ڈی ہے PCRM فیصل آباد، اور یوٹیوب چینل ہے پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز۔ اس آئی ڈی اور اس یوٹیوب چینل پر موجود پروگرامز کو آپ سنیے، کمنٹس کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور ان کو شیئر کرنا بھی مت بھولیے۔ تو چلیے ابھی ہم آپ کے خطوط کو، پیغامات کو شامل کرتے ہیں۔ حیدر سید ساہیوال سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ نے کہا کہ پروگرام کا آغاز بہت اچھا لگا، اور کہتے ہیں کہ محترم عادل مشتاق کی آواز میں پروگرام سنا، بہت شکریہ جی۔ کہتے ہیں کہ خیرات کے بارے میں بہت سن کر اچھا لگا، اور اسی طور پر اللہ تعالیٰ نے جو تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے، ہمیں اس کے سامنے ہمیشہ اچھے کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ نے دیگر باتیں بھی کی ہیں، بہت شکریہ پیارے بھائی آپ کا۔ رائے ولایت کھرل ساکی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے کہا کہ آپ اتنا اچھا پروگرام پیش کرتے ہیں، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ اتنا اچھا معیاری پروگرام پیش کرنے پر راہ زندگی کی پوری ٹیم کو، یشوا صاحب کو، عادل مشتاق صاحب کو، عظما آپی صاحبہ کو، خاص طور پر بھائی انور کو میرا خلوص برا سلام۔ اور پھر آپ نے کہا کہ میرے پیارے بھائی ندیم صاحب کو میں سلیوٹ کرتا ہوں، جو اتنی محنت کرتے ہیں، اور ان کی محنت پروگرام میں نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے پروگرام بہت پسند آتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ندیم صاحب کو میرا بہت بہت سلام قبول ہو۔ تو جناب آپ کا سلام ندیم صاحب کو پہنچا دیا ہے، اور بہت شکریہ آپ کی اس حوصلہ افزائی کے لیے۔ عاشق مسیح جلو گاؤں سے آپ کا تعلق ہے، لاہور سے۔ آپ نے کہا بہت خوبصورت پروگرام، بہت شکریہ پیارے بھائی۔ محمد ارشد گوندل صاحب ننکانہ صاحب سے آپ ہمیں خط لکھتے ہیں، بہت شکریہ محمد ارشد گوندل، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کو پسند کیا۔ عقیل اسلم المعروف ہنی جی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کہا کہ پروگرام کے سبھی سلسلے بہت اچھے ہیں، تھینک یو سو مچ آپ کا کہ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ فیس بک پر
जिन दोस्तों ने प्रोग्राम को सुना और कमेंट किया, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और लेकिन उससे पहले मैं हाजी लियाकत अली ऐवान, आपका बहुत शुक्रिया। आपने गुड मॉर्निंग का मैसेज करते हुए आपने कुछ अच्छी बातें हमें भेजी। आपने कहा खामोश रहने की आदत शऊर का पहला दर्जा है, बदतमीजी का जवाब अखलाक से देना दूसरा दर्जा है, और गाली का जवाब दुआ से देना तीसरा दर्जा है। बहुत शुक्रिया जी, आपने बड़ी अच्छी बात की है। और इसके अलावा हमारे प्यारे भाई एस अब्दुल गफूर कैसर साहब, आपने बहावल नगर से कहा जी कि बहुत उम्दा प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। तो मैं बात कर रहा था हमारे फेसबुक पर सुनने वाले सामीन का, तो प्रिंस अब्दुल शाहीन कहते हैं बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम। गुलाम सरवर बलोच कहते हैं दिलचस्प और प्यारी बातों का मजमुआ प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया। नवीद अहमद कहते हैं गुड प्रोग्राम। अमजद खान ने कहा प्रोग्राम राह जिंदगी मैडम उज़मा यूनुस की आवाज में सुना, बहुत अच्छा लगा, और कहते हैं कि सुनकर बरकत मिली। शुक्रिया प्यारे भाई। और इसके अलावा राकेश अरोड़ा और दीगर साथियों में जीत चावला इंडिया से हमारे ये लिसनर हैं, बहुत शुक्रिया जी आपका। दीगर दोस्तों में मैं चौधरी अल्ताफ हुसैन आजिज, आपका बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद अरशद साकिब गोंदल, आपने कांग्रेचुलेशंस का भी मैसेज किया, बहुत शुक्रिया जी। और इसके अलावा चंद एक और नाम है जी। अमजद खान, आपने भी उज़मा यूनुस की आवाज को पसंद किया है। और दीगर साथियों में फयाज करीम कलरी, आपका बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा जनाब मेरे पास खत मौजूद है हमारे प्यारे भाई असद मुराद का, आपका ताल्लुक है जिला केट से। आपने कहा कि प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। और आखिर में मैं अभी खतूत तो बहुत है, लेकिन वक्त की कमी के बायस मैं बाकी सबको भी उतना ही हम प्यार करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ एक दो नाम शामिल और कर सकता हूँ। तो मेहर अब्दुल सत्तार सल्फी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और साबित सिंधी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और दीगर साथियों में मुबशर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और मैं यहाँ पर माजरत के साथ अभी वक्त खत्म हुआ चाहता है, इस सिलसिले को यहीं पर समेटूंगा और आगे बढ़ूंगा। और आगे बढ़ते हुए आपको लिए चलूंगा अभी सराइकी ड्रामा सुनवाने, आइए मिलकर सुनते हैं। खैर है अम्मी, तुसा मेरे को सदवाया रात 11 बजे पेन, क्या गाल है? अबे पुत्र सलीम, मैं ते तेरा प्यू एक जरूरी काल करना चाहनी है। दसो। देख सलीम, ओए तेरी शादी को 6 साल थी गए। जी आबा जी। ओए दू धियां दे सिवा क्या जाए कौसर ने? पुत्र, ओए मैं जिंदगी दे 6 एकड़ी किनारे हां, मैं अपने जमीना दा वारिस देखना चाहना। जिया धी पुत्र तो अल्लाह दे हाथे च अब्बा जी, मैं ते कौसरी मामले च क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकदा तू? दूजी शादी करे दे हैं असां तेरी। हाँ, जो उठा भी पुत्र न थिया ते वल त्रीजी हां। ओए बकवास ना कर। ओए मैं चौधरी अल्लाह रखे नाल गाल कीती है, ओ अपनी छोटी बहन दा रिश्ता देवण कीते तैयार है, ते नालू ए भी आखे जे तू अपनी बीवी को तलाक देवे तां वल ओ जमीन दा हिस्सा भी देसी, न ता ना देसी। अब्बा जी, तुसा जमीन दे नाल शादी करेंदे हो मेरी, या बाल कीते पे करवेंदे हो? ओए मां वांगू तेरी भी उल्टी खोपरी है, सुनी? मेरी कहीं उल्टी खोपड़ी थी वर पै गई है, मैं तो जडनी सीधी गाल करा, उल्टी खोपड़ी है। ओए अच्छा बख्तावर, तू तो चुप कर। ओए तो मैं इवें इजाफी गाल कीती है। अब्बा जी, कौसर मेरी न सिर्फ बीवी है बल्कि मेरी मोहब्बत भी है। हाँ, मोहब्बत। अम्मी, अगर उन्हें सुन गिदा ना कि मैं दूजी शादी करनी है तो ओ मर वैसे वे, वो आपने तो मेरे दरमियान हवा को ही बर्दाश्त नहीं करेंदी। नहीं मर्दी, सारे फिक्रा होंदे रन्ना दिया, हवा नहीं बर्दाश्त करेंदी। डिठे वे अब्बा जी। बस अब्बा जी को क्या थे? अब्बा जी सुन दे कह नहीं बैठे। अच्छा हुन जरा हौले बोल। चलो मैं चुप हां, तुसा करो। पुत्र नाल भी गाल करे नहीं, कुल्लड़ दी क्यों है तू? मेरे हां भाई लग्या बैठे ना पुत्र नाल गा। मैं चलो मैं चुप, मैं नहीं बुलेंदी, जिवें तोरी मर्जी आवे। बस मैं कुछ नहीं जानदा पुत्र। ओए कौसर इजाजत देवे ता ठीक है, वरना तू दूजी शादी की ते बस तैयार थी वही। बिल्कुल। कौसर मेरी जान, सब कुछ ठीक है, ये सिर्फ कमजोरी है। तू इवें निक्कियां निक्कियां गाली हाँ को ना लाइया कर। मैं तेरा पूरा चेकअप कीते मैं। क्या करा समीना, अपने कन्ना नाल सुने मेरी सस अते मेरा सोहरा सलीम दी दूजी शादी तैयार कीती खड़न। क्या सलीम भी तैयार है? बिल्कुल। ओ जायदाद किवें छोड़ सकते अते मैं पहाज बर्दाश्त करा? नामुमकिन। क्या उन्हां को कोई पता नहीं?
जो धी पुत्र अल्लाह दे इख्तियार च सब पता है, पर समीना पढ़े लिखे जाए ना कौन मथा लावे। ते सलीम भाई दे दावे ओ ता पियो मां दे अगू गां है गां। अच्छा अल्लाह मालिक है। अच्छा ते उंदा एक बहु करम है जो इन दफा पुत्रे। समीना सच पे याद है? हाँ मेरी जिंद हाँ। हुण तू अपनी सेहत दा ख्याल रख ते तेकू कहीं फिक्र दी कोई जरूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आओ आओ सलीम भाई, ए मैं दवावां ता लिख दित्ती हन। अच्छा बस तुसा ए ख्याल रखो जो कौसर को कहीं किस्म दी ज़हनी परेशानी न थीवे। अच्छा खुराक च इना को फल सब्जियां अते वाइट मीट ज्यादा देवो ते सवेर शाम इना को हल्की जी सैर कराओ। इना गाली नाल जच्चा ते बच्चा दूहां ही सेहतमंद रहंदे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर समीना। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अम्मी ते चौधरी अंकल भी आए। बस थी तू मेरे को यही दस मेरा पोतरा किथा है। इवे तेरा टेलीफोन जब मिले तो सजी में बैठा सी भज दे आए हैं। तुसा तशरीफ त रखो। पुत्र हुण सबर नहीं थींदा। जे ताई पोतरे को न देख सा ना हुण मेरे कोल सबर नहीं वेती। अल्लाह अल्लाह तेरा हजार शुक्र है। अबे वानी में सलीम वानी पोत्र को जागे ना जरा देखो तो सही। डॉक्टर समीना मैं वञा? नहीं सलीम भाई नहीं, जनाना वार्ड च मर्दा को वञण दी इजाजत कोई नहीं। ते मैं लगी वञा? नहीं आंटी तुसा भी नहीं वन सकदे। पर क्यों? एडी बहाली न थी बहाल को धवेंदे शवेंदे पायो सन। ओए नर्स चासी साफ सुथरा तो सही। मैं आधी पे मैं अपने पोतरे को देखा हूं आधी नहीं। नर्स जो चासी को साफ सुथरा करके वल देख गिने। ये भी नहीं वन सकदे। कौसर वार्ड कनु मेरे प्राइवेट रूम में छे। ओ तो डॉक्टर समीना वालता हथु आसान वालता कोई मुश्किल कोई ना थई ना। सलीम दा पियो मालूम थी दे जो धी जम्मी एस साकवी में बेवकूफ बनाया गए। इवें भज दे आया शुक्र है मेरा पैर नहीं मुड़ गया। धी नहीं ओए पुट्ठी खोपरी ये पुट्ठे गाली सुचेंदी दा मैं किले मेरी गाल सच थी सी। अम्मी बस एक मिनट चुप तो करो। डॉक्टर समीना क्या गाल है? सलीम भाई अते चौधरी साहब जी ते रजिया आंटी जी यकीन करो अल्लाह ने कौसर को सोना सवड्डा ते सेहतमंद फरजांद दिते। मैं दे दी पया जो तुसा ही चूं कहीं ने भी कौसर दा नहीं पूछया अते यह गाल में को कौसर ने पहले भी दसाई है। वेरी सॉरी डॉक्टर समीना आई एम सॉरी। सलीम भाई कौसर दा पैगाम है जो अल्लाह ने को फरजांद त दिते अते ओ आदीए धीरी तुसा रखो ते पोतरो रखे सी अते तुहाडे कोल तलाक भी मंगी है। क्या तलाक? तलाक? जी तलाक। अते तुसा दूजी शादी करके बिया पुत्र पैदा कर गिनो। नहीं नहीं ये किवें थी सकती? औलाद सादी होवे ते रखे ओ माए उन्हें अपने फैमिली वकील को सडे जे तुसा तलाक ना देसो ता ओ खुला दा केस फाइल करा देसी। कौसर साको पुत्र देवे या न देवे मेरे इना हथा चोड़िया को देख साको एक वारी मिला चा कौसर को। सबीना मेरा पुत्र असा माफी मंगदे हैं उनदे कोल। सारी जिंदगी जब कौसर दे को हाथ जुड़ेंदा रह गया मैं होण तो नहीं तेरे हाथ जोड़े डिठन। डॉक्टर साहब तुम जरा सडो तो सही। डॉक्टर समीना जी जी नहीं नहीं अब्बा जी हाथ ना जोड़ो। एक ही यही तुम्हारा पोतरा। नहीं पोतरा एक तेरा फफे कुटनी। तू चुप कर बाओ। तू घर ही ना जोल। तू इथां अपने पेके वने ना एक घर हुण मैं कौसर दे ते मेरे पोतरे दे बस तू वज अपने पेके। हाय हाय सारी जिंदगी दी खिदमत दा यो सिला है। ओए अम्मा जी सिला तेरे कीते ता चाहती बदे हाल ये तेरी खिदमत है। अच्छा अच्छा अब्बा जी खुशी दा मौका है अल्लाह दा नाम मनो खत्म करो इन गाल को। हां ए देखा मेरे पोतरे ने बड़ी सोनी गाल कीती है। जी तो जनाब हम सुन रहे थे ये ड्रामा और वाकई तलाक हमारे मुआशरे का मजहबी तौर पर भी माशरती तौर पर भी खानदानी तौर पर भी और जाती तौर पर भी एक बड़ा तकलीफ दे अमल है। तो खुदा करे कि ये अमल जो है किसी की जिंदगी में कभी ना आए। आगे बढ़ते हैं और जैसे कि मैं आगाज में बात कर रहा था कि हम जब खुददारी का या मुजाहरा करते हैं तो इसके बहुत से फवायद हैं। एक तो फायदा ये होता है कि हम मेहनत करने के आदी हो जाते हैं और दूसरा फायदा ये भी होता है कि लोग हमारी इज्जत करते हैं। खुदा के कलाम में भी मेहनती की तारीफ की गई है और मेहनती के बारे में ये भी कहा गया है कि वो कभी कंगाल नहीं होगा। और ये सभी बातें तभी मुमकिन है जब हम खुदा की तरफ रजू करें और सबसे अवलीन तरजीह
खुदावंद ताला की ज़ात को दें और उसकी मर्जी को पूरा करने चलें। आप बीती भी हम इसी ताल्लुक से सुनेंगे, तो आइए फिर मिलकर सुनते हैं। मेरा नाम खलील गिल है। मैं अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या जिसने मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर दिया, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं गुज़श्ता 3 साल से बैंक में जॉब कर रहा था और खुश था। तो उस वक्त मेरी ज़िंदगी में एक सिर्फ अपना कैरियर था कि मुझे काम करना है, ग्रो करना है, मुझे अपने डेजिग्नेशन इम्प्रूव करना, अपना सेटअप इम्प्रूव करना, दैट्स इट। आई गॉट प्रमोशन और मैं अपने साल में एनुअल मीटिंग में टॉप परफॉर्मर था पूरे रीजन में। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। इन्हीं चीज़ों में मेरी भाग दौड़ ज़्यादा थी। अपनी लाइफ को खुदा के साथ शायद बहुत ज़्यादा नहीं जोड़ सकता था, रूटीन में अपनी ज़िंदगी को चला रहा था। और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट और वाक़यात जो डिफरेंटली होते हैं वो मैं दूसरों में तो तसव्वुर करता था, लेकिन शायद मेरे ज़हन में ये नहीं था कि कभी मेरे साथ भी कुछ ऐसी डिफरेंट चीज़ होने जा रही है या अचानक मेरे साथ कुछ हो जाएगी। कोई हॉस्पिटल जाता था किसी वजह से तो मैं उसके लिए हॉस्पिटैलिटी के लिए जाता था, लेकिन मुझे नहीं आइडिया था कि कभी मैंने भी इस तरह से जाना है। तो हुआ कुछ इस तरह से कि मैं एक दिन अपनी रूटीन में ऑफिस से वापस घर गया हूँ रात को अपनी फैमिली के साथ। मेरी बेटी की बर्थडे थी, हमने सेलिब्रेट की बड़े अच्छे तरीके से। कोई भी ऐसी कंडीशंस नहीं थी कि मैं किसी प्रेशर लाइफ में चल रहा हूँ जो कैरियर की वजह से होती हैं सम टाइम। उसके बाद रात में मिडनाइट में सडनली मुझे ब्रेन हैमरेज हो गया और फिर मेरी फैमिली मुझे हॉस्पिटल ले गई और मैं 4 दिन के लिए कोमा में चला गया और मैं किसी भी तरह से बिल्कुल भी दुनिया से बेखबर हो गया। इवन देन के डॉक्टर्स ने ये कह दिया कि आप मेरी फैमिली को कि आप इनके लिए प्रेयर करें क्योंकि इनमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है, हम हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। सो मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा प्रेयर्स की, खुदा से मिन्नत की, गिड़गिड़ाए और खुदा ने सुनी और मेरे फिर से मेरी ज़िंदगी की हलचल जो है वो दोबारा से शुरू हुई। मैं इम्प्रूव हुआ, खुदा ने मुझे सेहत और तंदुरुस्ती से नवाज दिया और मैं अपनी लाइफ में दोबारा से आ गया। 2-2.5 साल मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा अपने कैरियर से, अपनी चीज़ों से, अपने घर में रहा। और इन 2-2.5 साल में जो कि बहुत मेरे लिए लंबा अरसा है क्योंकि बहुत मुझे टाइम मिला। मैं अपनी ज़िंदगी को शायद इतना कभी टाइम नहीं दे सकता था। अपनी फैमिली को टाइम देने के साथ साथ मेरे पास इंडिविजुअल बहुत वक्त था जिसमें बहुत कुछ मैंने सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ, किस तरफ को जा रहा हूँ, सिर्फ एक रूटीन लाइफ जी रहा हूँ या मुझे कुछ अपनी ज़िंदगी के लिए अपने खुदा के साथ तल्लुक़ को भी बहाल करना है। तो इस टाइम में मुझे खुदा ने झंझोड़ा, मेरी मदद की और मैंने फिर एक चीज़ डिसीजन लिया और मैंने अपनी ज़िंदगी को जो है वो फिर से एक टर्न लिया कि अब इस कैरियर को और सारी ज़िंदगी को, अपनी फैमिली को, सबको साथ लेके चलना है, बट खुदा के साथ चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और खुदा के साथ चल के मैं इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता हूँ। तो खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि अभी जो मेरी ज़िंदगी है इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ आई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको मैं शायद गलत को गलत भी नहीं समझता था, एक रूटीन में करता था, वो भी अब मुझे महसूस होना शुरू हो गई कि नहीं, हमें दूसरों का भी ख्याल करना है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से करनी है और खुदा को हमेशा याद रख के करनी है। आप सब के लिए भी यही एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे भी कि हमें अपनी लाइफ के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और खुदा को ज़रूर वक्त देना चाहिए ताकि हम खुदा के नाम में ज़िंदगी गुजारें। जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो कुछ हमने इस तजर्बे से सीखा, सुना, उससे हमारी हौसला अफजाई भी हुई और हमारे ईमान की तरक्की भी हुई और हम अपने हर काम में खुदावंद ताला की जात को जरूर तरजीह देंगे क्योंकि वही इस लायक है और ये वाजिब भी है। अभी प्रोग्राम को समेटने का वक्त हुआ चाहता है। आखिर में हम सब दुआ करेंगे और मैं खास तौर पर यही इस पैगाम के साथ इसको आज इख्तिताम पजीर करूंगा कि हम सब जितनी हमारे अंदर इस्तेदाद खुदावंद ताला ने रखी है, हम जरूर उसको इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि हम अपना बोझ खुद उठाएं और खुदावंद की मदद मांगे। आइए हम अपने सरों को झुकाते और रब ताला के हुजूर झुकते हैं। ऐ रब्बे करीम, हम आपके हुजूर बड़ी आजिज़ी के साथ मौजूद हैं। आप हमारे मालिक हैं, खालिक हैं और परवरदिगार भी।
خداوند تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کی مدد کریں۔ میں تمام سامعین اور ان کے خاندانوں کے لیے خیر کی، سلامتی کی، برکت کی دعا کرتا ہوں، اور اپنے ملک پاکستان کے لیے بھی خیر و برکت کی دعا کرتا ہوں، اور یہ دعا مانگ لیتے ہیں خداوند یسوع المسیح کے نام میں، آمین۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عادل مشتاق کو پروگرام راہ زندگی ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔